दोबारा से इसको करते हैं कि क्लॉज definition types of examples. A clause is comprised of a group of words which includes a subject and a verb. Clause group of words हैं जिसमें एक subject और एक verb होता है. A clause contains only one subject and one verb. One subject, one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. कि आपकी clause में जो subject होता है वो मेंशन भी हो सकता है क्लियरली और वो हिडन भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जो है वो अपरेंट होगा और डिस्टिंग्विशेबल होगा, अपफ्रंट होगा, वो वाज़ेह होगा उसमें. मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जो डेफिनेशन है कि अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. Complex or compound sentences are types of sentences classification of sentences according to the structure. Okay, so these are according to the structure of a sentence. तो clause क्या है? Group of words containing a subject and a predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence. Complex या compound sentence के एक member, एक हिस्से की हैसियत से, एक part की हैसियत से वो अपना functioning करता है clause. एक sentence में आपके एक या एक से ज्यादा clauses हो सकती हैं. A clause consists of a subject and a verb and is the smallest grammatical unit that expresses a thought. So a clause, because of its subject and verb, it expresses a thought and is the smallest grammatical unit. In its simplest form, a clause in grammar is a subject plus a verb. The subject is the entity doing the action of the sentence and the verb is the action that subject completes. Clause में क्या होता है? Subject क्या होता है? वो चीज, वो entity जो कि आपके action को perform कर रही है, doing the action उस clause में, and the verb is the action that subject completes. और verb क्या है? वो action जो कि subject complete करता है. A clause creates a complete thought. It creates a complete thought, an idea or a statement that can stand alone. तो clause में जो subject verb होता है वो एक ऐसे idea को create करता है कि वो अपने आप में complete होता है. And it can stand alone, meaning thereby अगर आप उस simple clause को भी ले लो तो that in itself is complete and it does not require or need anything else to complete itself. ठीक है ना? A complete thought is also called a main clause or independent clause. अच्छा, अब वो clauses जिसमें thought complete हो और which can stand alone, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कि जिसको किसी और चीज की जरूरत ना हो थॉट कंप्लीट करने के लिए, आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए आपका एक मेन क्लॉज जो है वो काफी होता है. इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं कि इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती और वो अपने आप में आइडिया को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है. A clause may include the verb predicate as well, but it must include at least the subject and verb to be considered a clause. कहते हैं कि आपकी clause में verb का predicate भी हो सकता है, लेकिन जो minimum requirement है clause की वो subject और verb की है, और जिसमें subject और verb हो उसको हम clause कह सकते हैं. It should be noted too that a clause in a sentence is different from a phrase in that it must contain a subject and a verb. Phrase से इस तरीके में different है कि clause में subject और verb वो जरूर होता है. अगर subject और verb ना हो you cannot call it a clause. अब ये एक examples हैं independent clause की. देख लें आप, subject plus verb. हमने कहा ना कि clause में subject होता है और verb होता है. तो first example आप देख लो, you eat and she speaks. अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इन एक्सप्रेशंस को यू ईट और शी स्पीक्स को किसी और चीज की जरूरत है, या ये इनकम्प्लीट थॉट्स हैं या कंप्लीट हैं? कुछ मीनिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं ये चीजें या नहीं? कर रही है सर, ये मीनिंग. ठीक है. सो यू ईट और शी स्पीक्स, they are complete. The thought here
is complete. That is why it is known as the independent clause. ठीक है? अच्छा, ये वो चीजें हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो. अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, ये a clause may include the verb predicate as well. ठीक है ना? इसमें अगर आप प्रेडिकेट की आप एग्जांपल ले लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रेडिकेट. यू ईट एन एप्पल और शी स्पीक्स लाउडली. तो एन एप्पल और लाउडली ये वर्ब प्रेडिकेट्स हैं. तो क्लॉज में बाज़ औक़ात आपके प्रेडिकेट भी शामिल होते हैं, लेकिन वही चीज कि अ क्लॉज इन इटसेल्फ इज कंप्लीट, इट गिव्स अ कंप्लीट थॉट. ठीक? अब ये एग्जांपल्स आप देख लो. I graduated last year. Subject, verb और predicate. तो ये complete thought है, one clause है. Two clause sentences. When I came here, I saw him. When I came here, I saw him. अब इन दो clauses को आप देख लो. I saw him, ये complete thought है. It does not need anything else. This clause in itself is complete. यहां पे meaning complete है. अगर आप इस clause को देख लो, when I came here, तो there is something missing. अगर आप इसको हटा दो इस second clause को और सिर्फ ये कह दो कि when I came here, तो this sentence या this clause, this is what we call the dependent clause. Here the thought is not complete. अगर आप कहते हो कि when I came here, no, when I came here, so what? तो क्या जब मैं यहां पे आया, इसका मतलब यही है ना कि when I came here, जब मैं यहां आया, जब मैं आया तो क्या? So there is something missing, which means that this clause cannot stand alone. ये clause अकेले meaning या thought को complete नहीं करता. It needs something. In the instant example, it needs this clause to complete the thought. अगर हम सिर्फ इसको पढ़ लें तो यहां पे मीनिंग कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, समथिंग मिसिंग. इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. तो यहां पे ये टू क्लॉज सेंटेंस है कि इसमें दो क्लॉजेस हैं, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. अच्छा, ये थ्री क्लॉज है. व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी. ठीक? जब मैं यहां पे आया, डिपेंडेंट क्लॉज, आई सॉ हिम, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ही ग्रीटेड मी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही ग्रीटेड मी. कंप्लीट थॉट है, इट डज नॉट नीड एनीथिंग एल्स. उसने मुझे खुशामदीद कहा, ही वेलकम्ड मी. तो ये दो जो क्लॉजेस हैं, आई सॉ हिम, ही ग्रीटेड मी, दे आर कंप्लीट. इंडिपेंडेंट, ये वाला व्हेन आई केम हियर, दिस इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट. सो दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है? Okay, so independent clause. An independent clause can stand alone in a sentence. जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि it can stand alone. It in itself completes the thought and it does not need anything else for its completion. It contains the subject and a verb in its smallest form. A clause may also include modifiers and verb predicate. It is a complete thought and the smallest unit of grammar that is syntactically accurate. Syntactically, structure wise, कि structurally जो है वो accurate होता है. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. तो independent clause जो है वो अपने आप में meaning complete करता है and it looks much like a regular sentence. मतलब ये कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक रेगुलर सेंटेंस की तरह होता है, वो अपने आप में मुकम्मल होता है. इन अ सेंटेंस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेटर्स और कंजंक्शंस एंड, बट, सो, और, नॉर, फॉर, येट, एटसेट्रा, जो भी हो. लेकिन कहते हैं कि एक सेंटेंस में आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेटर्स के जरिए
कंबाइन भी कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आप देख लो, आपको समझ आ जाएगी। ये ही इज अ वाइज मैन, आई लाइक हिम, कैन यू डू इट प्लीज, आई रेड द होल स्टोरी। ये फर्स्ट फोर जो हैं 5, इसमें आप देख लो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, ठीक है, ये वर्ब है इसका, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। इसी तरह ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है जिसमें कि सब्जेक्ट हिडन है, और ये भी एक क्लॉज है इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब एग्जाम्पल हमने दी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक सेंटेंस में हम कोऑर्डिनेटर्स या कंजंक्शंस के जरिए कंबाइन करते हैं। आई वांट टू बाय अ फोन बट आई डू नॉट या आई डोंट हैव एनफ मनी। आई वांट टू बाय अ फोन, सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट। इसी तरह ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। आई डोंट हैव इनफ मनी, सब्जेक्ट वर्ब और आपका प्रेडिकेट। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटर या कंजंक्शंस के जरिए कंबाइन किया जाता है, ठीक है। इसी तरह ये देख लो, ही वेंट टू लंदन एंड विजिटेड द लॉर्ड्स, सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड क्लॉज इज ही, सो ही विजिटेड द लॉर्ड्स इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया गया कोऑर्डिनेटर या कंजंक्शंस के जरिए। और एलेक्स स्माइल्स व्हेनेवर ही सीज हर, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आप ये कह लो सिर्फ कि व्हेनेवर ही सीज हर, तो देयर इज समथिंग मिसिंग। अगर एलेक्स स्माइल्स को आप हटा दो, व्हेनेवर ही सीज हर, तो जब भी वो उसको देखता है तो क्या, so there is something missing, which means that this part of a sentence, this is the dependent clause, and it depends on this main clause or independent clause. Because Alex smiles, this clause in itself is a complete thought, and this subordinate, yeah, dependent clause, it needs this main clause to complete the thought, ठीक है। अब आ जाओ डिपेंडेंट क्लॉज पे। डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, हाउएवर they cannot stand alone as an independent thought. They must be joined with an independent clause to be grammatically correct. A dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. वही जो अभी हमने इन एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया, ये देख लो कि whenever he sees her, this is incomplete or unfinished thought, and this dependent clause, it needs an independent or main clause to complete the thought and thus making a sentence. यहां तक समझ आ रही है? अगर कोई क्वेश्चंस है, डू आस्क इट। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज, अच्छा कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज। इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि इट कैन नॉट फंक्शन अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंप्लीट द सेंटेंस। A dependent clause alone cannot form a complete sentence. वही जो अभी हमने डिस्कस किया। The subordinators do the work of connecting the dependent clause to another clause to complete the sentence. In each of the dependent clause, the first word is a subordinator. Subordinators include relative pronouns, subordinating conjunction, and noun clause markers. अभी आप देखते हैं, when I was dating Diana, ये subordinators हैं, when, who, which, that, where, if, and though. ये वो subordinators हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की रही, ये subordinators जिसमें relative pronoun भी आ सकते हैं, who, which वगैरह, conjunctions भी हैं, whenever वगैरह, और noun clause markers भी आ सकते हैं, ठीक है। तो when I was dating Diana, I had an accident. अब आप इस डिपेंडेंट क्लॉज को देख लो कि when I was dating Diana, तो this part of the sentence cannot stand alone because here the thought is incomplete. This clause
needs something else to complete the sentence. और वो क्या है? वो आपका मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? आई हैड एन एक्सीडेंट, अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देख लो सेंटेंस का, तो दिस हियर द थॉट इज कंप्लीट कि जी हाँ मेरा एक एक्सीडेंट हुआ या एक वाकया पेश आया. सो आई हैड एन एक्सीडेंट, दिस इज द मेन क्लॉज or the independent clause. And this, the first part, when I was dating Diana, this is the dependent or subordinate clause. Why? Because here the thought is not complete and it needs something else to complete the thought. इसी तरह I know the man, ये complete है, subject verb और predicate. ये sentence, ये एक complete sentence आप इसको कह सकते हो, I know the man. लेकिन ये चीज अगर आप इसको देख लो, हु स्टोल द वॉच, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है. अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन हम यहां पे लगा दें तो ये फिर कंप्लीट सेंटेंस बनता है. लेकिन चूंकि पीरियड है, फुल स्टॉप है, इसलिए हम इसको फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. तो अगर आप इस सेंटेंस में से सिर्फ इस पार्ट को देख लो कि हु स्टोल द वॉच, तो दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि एक तो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है. अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन होता तो फिर तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, थॉट कंप्लीट था. लेकिन चूंकि नहीं है तो फिर ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस क्लॉज को, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है थॉट कंप्लीट करने के लिए. ये अंडरलाइंड जो भी हैं ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं. अच्छा देख लो, ही बॉट अ कार which was too expensive. Now which was too expensive, अगर आप सिर्फ इसको देख लो तो incomplete thought. So here it needs the main clause. अब ये देख लो, I know that he cannot do it. That he cannot do it, ये subordinate clause है. That he cannot do it is ये meaning जहां पे complete नहीं है और there is something missing. You will always feel something missing, something lacking. अच्छा, where he was born, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ही डज नॉट नो वेयर ही वाज बोर्न. अगर आप ये देख लो सिर्फ इसको, ही डज नॉट नो, बस सिंपल, थॉट कंप्लीट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज है. लेकिन वेयर ही वाज बोर्न अगर आप इसको अकेले पढ़ोगे तो ये थॉट कंप्लीट नहीं करता. और ये डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जब यहां पे कंबाइन हुई है इस मेन क्लॉज के साथ, तो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिला है जिसमें थॉट कंप्लीट है. इफ यू डोंट ईट, तो अगर हम सिर्फ इतना कह दें इफ यू डोंट ईट, अगर तुम नहीं खाओगे तो क्या, तो उसके लिए तो का जवाब क्या है? ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज. आई वॉन्ट गो, तो आई वॉन्ट गो को अगर आप अकेले देख लो एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्लॉज है, लेकिन it could also be a complete sentence because the thought here is complete. यहां पे ये डिपेंडेंट है क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड्स हैं सबऑर्डिनेटर्स, इनकी वजह से this sentence is incomplete, this clause is incomplete in itself, the thought here is not complete. अच्छा, इसी तरह ये देख लो, he is a very talented player though he is out of form. Though he is out of form depends on the first clause, on the main clause, in order to complete the thought. So he is a very talented player though he is out of form. अगरचे वो out of form है but he is a very talented player. ठीक है.